In this video, we are going to discuss important legal current affairs from 8th May 2021 till 14th May 2021. If you have not seen the previous video, that is important legal current affairs from 1st May 2021 till 7th May 2021, then I'll leave the link to that video in the description box below. Do watch that video. In this video, I'm going to discuss the important Supreme Court, High Court judgments, important legal news. We are going to discuss in detail. I'm going to explain you everything right now. Who should watch this video? If you are preparing for any law entrance exam, it can be CLAT, AILT, SLAT, it can be any 5-year or 3-year law entrance exam like that of DU, PU, BHU, Maharashtra CET, and in terms of 5-year it can be CLAT, AILT, your Maharashtra CET, SLAT, any. You should watch this video because then you will understand a lot of things, right? Number one, if you are a law student, then also you should watch this video because I have explained things in such a way that you're going to understand a lot many things, and you can also find topics on which you can write research papers, you can write articles, you can write blogs. Similarly for lawyers also, for law students and lawyers, I always tell you guys that you should stay updated when it comes to legal news. You should know, you should have your own opinion, and if you watch this video, this is going to help you in understanding a lot of things, right? So let's quickly get into this video. So guys, if you want free downloadable PDFs of the bare acts that I'm going to mention in this video, of the judgments of Supreme Court, High Court, or the amendments, then they are available on our website www.lawgiri.com for free. So do visit. If you are a law student, if you are a lawyer, then you must check out the bare provisions, and for that reason only we are providing all of this for free. They are downloadable PDFs to download and study. And yeah guys, welcome to Lawgiri. I hope you're subscribed to Lawgiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLawgiri. We do pretty motivational stuff out there. If you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Lawgiri, then do follow us on Instagram. Supreme Court has constituted a 12-member national task force to facilitate a public health response to the pandemic based upon scientific and specialized domain knowledge. So basically इसका background समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों किया गया. So अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ गई है. जैसे ही सेकेंड वेव आई, हमने देखा कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही थी. स्पेशली स्टेट्स लाइक दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, और हर रोज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स दे रहा था कि यू शुड फुलफिल द डिमांड्स, राइट. इवेंचुअली कर्नाटका हाई कोर्ट की भी जजमेंट आ गई कि हमें भी, हमारी स्टेट को भी इतनी जो है ऑक्सीजन वो आपको सप्लाई करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं चलने वाला. वी नीड अ बॉडी, वी नीड अ ग्रुप हु थिंक्स अबाउट इंटायर इंडिया, राइट, हु थिंक्स अबाउट इंटायर इंडिया, इन सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में सोचे. ऐसा नहीं है कि हर एक हाई कोर्ट अपनी डिमांड बता रहा है उसके बाद कुछ हो रहा है, नहीं. हमें एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो पूरे इंडिया के बारे में सोचे. तो सुप्रीम कोर्ट ने सुजेस्ट किया कि नेशनल टास्क फोर्स अपॉइंट करनी है. बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल टास्क फोर्स अपॉइंट कर देनी चाहिए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NTF भी बोला जा रहा है, राइट. तो ये 12 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स अपॉइंट करी गई है. सुजेस्ट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, ओके फाइन, ठीक है ना. जो साइंटिफिक और स्पेशलाइज्ड डोमेन नॉलेज के बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स है उसको हैंडल करेगी, एंड वो डिसीजंस किस बेसिस पे लेंगी? साइंटिफिक, रैशनल एंड इक्विटेबल बेसिस. साइंटिफिक मतलब साइंस जो कहता है, रैशनल मतलब रीजन बेस्ड डिसीजन होगा. इक्विटेबल मतलब, इक्विटेबल का क्या मतलब है? इक्विटेबल का मतलब होता है इम्पार्शियल, इक्विटेबल का मतलब होता है फेयर, ठीक है. इसका एग्जांपल देती हूँ. इक्विटेबल इक्वल से कैसे डिफरेंट है? इक्विटेबल का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर 10,000 डोजेज हैं किसी मेडिसिन की या किसी भी चीज की, ठीक है ना, और एक स्टेट A है और एक स्टेट B है. A स्टेट में केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के, ठीक है ना, बट B में कम है.
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा कि 5000 इनको डोजेस दी जा रही हैं और 5000 इनको दी जा रही है, ये तो इक्वल हो गया। बट इक्विटेबल का मतलब ये हुआ कि इनको कम डोजेस की जरूरत है क्योंकि केसेस नीचे जा रहे हैं, मे बी इनको 2000 डोजेस दे दें और 8000 डोजेस इधर भेजें। दैट इज फेयर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, फेयर होना, इम्पार्शियल होना, दैट इज इक्विटेबल। राइट, टेन्योर ऑफ द टास्क फोर्स शैल बी 6 मंथ। 6 मंथ इनिशियली टास्क फोर्स का टेन्योर होगा, ठीक है, टाइम पीरियड होगा जिस टाइम के लिए रहेगी, इंपॉर्टेंट है। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट इज द फोर्स विल वर्क विद सीनियर ऑफिशियल्स, नीति आयोग के सीनियर ऑफिशियल्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स, ICMR, ठीक है, तो सबके साथ ये मिलजुल कर काम करेंगे। क्विकली सी दैट व्हाई द टास्क फोर्स हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, तो जजमेंट में से ही पढ़ लेते हैं। द rationale for constituting a task force at national level is to facilitate a public health response to the pandemic based on scientific and specialized domain knowledge, ठीक है ना, नेशनल लेवल एक टास्क फोर्स बनानी थी इनको, फाइन, ओके, वी एक्सपेक्ट द लीडिंग experts in the country to help, okay, fine, this will facilitate a meeting of minds and formulation of scientific strategies to deal with an unprecedented human क्राइसिस, ठीक है ना, मीटिंग ऑफ माइंड है, वो कहते हैं साइंटिफिक फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज होना चाहिए। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस टास्क फोर्स विल इनेबल द डिसीजन मेकर्स टू हैव इनपुट विच गो बियॉन्ड फाइंडिंग एडहॉक सॉल्यूशंस टू द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। सो बेसिकली एडहॉक सॉल्यूशंस का मतलब है कि जो सडन प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए सडन सॉल्यूशंस लेके आए जा रहे हैं, ठीक है ना। जबकि व्हाट वी शुड डू कि अगर हमें पता है कि आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, फॉर एग्जाम्पल इनका कहने का मतलब है जैसे कि हमें पता है कि शायद थर्ड वेव आएगी, राइट, थर्ड वेव कहा जा रहा है कि आएगी एंड वो चिल्ड्रन को ज्यादा इफेक्ट करेगी, जो चिल्ड्रन है उनको इफेक्ट करेगी, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जो बड़े लोग थे वो तो अकेले जाते थे कोविड सेंटर्स के अंदर और वो आइसोलेशन में रह लेते थे, राइट, बट बच्चों को क्या अकेले छोड़ सकते हैं, कैसे करना है, तो वो सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लस जैसे जैसे जो कोविड है उसके लिए मेडिसिन चेंज होती जा रही है क्योंकि न्यू टाइप की डिजीजेस आती जा रही हैं इसके साथ में, तो उसके लिए तो वो क्या कहने की कोशिश करें कि एकदम से प्रॉब्लम आ रही है तो एकदम से सडन डिसीजन लेने की बजाय अगर हम एप्रीहेंड कर सकते हैं कि शायद ये होगा, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर होगा। वही कह रहे हैं द लाइकली फ्यूचर कोर्स फॉर द पैंडेमिक मस्ट बी टेकन इनटू कंटेम्पलेशन एट द प्रेजेंट टाइम, की फ्यूचर कोर्स डिसाइड करना चाहिए, ठीक है ना। दिस विल इंश्योर दैट प्रोजेक्टेड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स कैन बी साइंटिफिकली मैप्ड इन द प्रेजेंट एंड मे बी मॉड्यूलेटेड इन द लाइट ऑफ एक्सपीरियंसेस गेन, ठीक है ना, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो मैप आउट कर सकते हैं, प्लान आउट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो वैक्सीन से रिलेटेड किसी भी चीज से। एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड नीड्स इज क्रूशियल टू इंश्योर द कंट्री रिमेन्स प्रिपेयर्ड टू मीट फ्यूचर इवेंचुअलिटीज which will cause a demand for oxygen, medicines, infrastructure, manpower and logistics. The establishment of the task force will provide the union government with inputs and strategies meeting the challenges of the pandemic on a transparent and professional basis in the present and in the फ्यूचर, बियरिंग इन माइंड वी प्रेजेंटली फ्रेम द फॉलोइंग टर्म्स। तो बेसिकली क्यों बनाया गया है, एक तो हम इसमें नोट कर लेते हैं प्लीज, एक तो ये नेशनल लेवल पे है, हर स्टेट हर यूटी के बारे में ये सोचेंगे, नंबर 1। नंबर 2, दे आर अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स, तो ये किस बेसिस पे डिसीजन लेंगे, साइंटिफिक, रैशनल, दे विल ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स एंड अकॉर्डिंगली प्लानिंग करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, राइट, सो दैट इज वाई। एंड इनका टेन्योर कितना रहेगा, 6 months, ओके। बेनिफिट ऑफ टास्क फोर्स क्या है, इनको लिबर्टी दी गई है, इनको फ्रीडम दिया गया है टू फॉर्मुलेट देयर ओन वर्किंग प्रोसीजर्स, फ्रीडम दिया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है वर्किंग के लिए, राइट, ये लोग सब ग्रुप्स बना सकते हैं डिफरेंट रीजन के अंदर जैसे भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, जो इनको असिस्ट कर सकें, जो ये चाहते हैं वो हो सके, उसके लिए डाटा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा सो दैट ये डिसाइड कर सकें, ठीक है, किसी भी चीज का डाटा। ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड अदर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस शैल कोऑपरेट विद टास्क फोर्स। अब देखते हैं कि ये काम क्या करेगी, नेशनल टास्क फोर्स को मेन चीजें क्या कही गई हैं करने के लिए। पॉइंट टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाई गई है नेशनल टास्क फोर्स के लिए। एक तो ये ऑक्सीजन सप्लाई देखेंगे कि एलोकेशन कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है ना। ब्रॉडर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, फैसिलिटेट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मेक श्योर करेंगे कि
ऑगमेंटिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द डॉक्टर्स, ट्रेन डॉक्टर्स, नर्सेस, ठीक है ना, एविडेंस बेस्ड रिसर्च प्रमोट करेंगे, ठीक है, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो अक्रॉस द नेशन बताएंगे, ठीक है ना, किसी ने कोई चीज़ वो पता चला है, किसी ने किसी चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल किया है तो वो शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, मेक रिकमेंडेशन इन रिगार्ड टू अदर इश्यूज ऑफ प्रेसिंग नेशनल कंसर्न्स, राइट, ये इनकी मेन जो है ये इनको करना है। Indian prisons are overcrowded. Occupancy rate in prisons in 2019 was 118.5%. Very important, 118.5%. Please make a note of it. So basically what happened, you need to understand the background of this case. What happened in 2020 was, in March 2020 when COVID came in India, जब COVID आया इंडिया में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो डिसीजन लिया कि जो prisons हैं इंडिया के वो ओवर क्राउडेड है, तो हमें कुछ करना चाहिए कि जो प्रिजन्स हैं वो ओवर क्राउडेड ना रहे, स्पेशली कोविड के टाइम पे, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो सकती, मतलब इतनी ओवर क्राउडिंग है। तो क्या हुआ, हाई पावर कमिटीज फॉर्मुलेट करी गई स्टेट लेवल पे, हर स्टेट में हाई पावर कमिटीज फॉर्मुलेट करेगी, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने जो प्रिजनर्स थे उनको कैटेगराइज किया और उनको रिलीज कर दिया टेम्परेरी बेल पे या फिर पेरोल पे। पेरोल का हम मतलब अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो बेसिकली उनको जेल में से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है ना। और ये क्यों किया गया, टू रिड्यूस द ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन्स, राइट। उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने तभी न्यू इंस्ट्रक्शंस भी इशू करी पुलिस को और उनको कहा आप सिर्फ उनको अरेस्ट करोगे जिन्होंने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसके अंदर पनिशमेंट क्या है, इज मोर देन 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, राइट। आप सिर्फ उन लोगों को अरेस्ट करोगे जिनके ऊपर एलिगेशंस है कि उन्होंने एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसके अंदर जो पनिशमेंट है वो 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 7 years प्लस इज अब ऐसा ऑफेंस कमिट किया है वेयर पनिशमेंट इज मोर देन 7 years, राइट। ओके, नाउ दिस वाज अप्लाइड टू करंट प्रिजनर्स एज वेल, मतलब जो करंटली जेल के अंदर थे उनको भी अप्लाई किया गया कि अगर उन्होंने एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसमें 7 years से कम इम्प्रिजनमेंट है तो उनको भी निकाल दिया गया बाहर जेल से, ठीक है। 60,000 prisoners were sent home on temporary bail. In this reduced the prison population by 15 to 20%, ठीक है ना। तो एक ऐसा कर कर उन्होंने ओवरक्राउडिंग कम कर दी prisons की। अब क्या हुआ कि फरवरी मार्च 2021 के अंदर केसेस कम होने स्टार्ट हो गए, तो उन्होंने कहा कि जो इनमेट्स हैं, ठीक है, उनको वापस बुला लो, ठीक है। और बहुत सारे इनमेट्स, अराउंड 90% ऑफ इनमेट्स वापस आगे जो लास्ट ईयर रिलीज कर दिए गए थे, ठीक है ना। बट 2021 के अंदर दोबारा से केसेस बढ़ गए हैं, तो कोर्ट ने अब क्या कहा है, सिमिलरली इनमेट्स हु वर गिवन पैरोल इन 2020 शुड बी रिलीज्ड अगेन ऑन अ 90-day पैरोल इन अ बिड टू decongest prisons, control infections and save lives within the prison walls. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो इनमेट्स हैं, जो कैदी जिनको हम कहते हैं इनमेट्स हैं, उनकी भी राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21, उनकी भी राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, राइट। एंड मोर ओवर कोर्ट ने ये भी कहा कि बहुत सारे इनमें से तो अंडर ट्रायल्स हैं, अंडर ट्रायल मतलब जिनका अभी तक प्रूव नहीं हुआ है दैट दे हैव कमिटेड द ऑफेंस, इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड, ठीक है ना। इंडिया हैज मोर देन 4 lakh prison inmates. Important, please make a note of this. It is observed that some of the prisons in India are overburdened and are housing inmates beyond optimal capacity. The requirement of decongestion is a matter concerning the health and right to life, and health both of the prison inmates and the police personnel working. वो कहते हैं inmates की ही नहीं right to life and health है, बल्कि पुलिस पर्सनल जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी भी राइट टू लाइफ एंड हेल्थ इफेक्ट होता है। द बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंप्राइजिंग ऑफ जजेस एल नागेश्वर राव एंड सूर्यकांत स्ट्रेस्ड, राइट। तो इसमें से हमें क्या याद रखना है, 4 lakh प्रिजन इनमेट्स, राइट, और राइट टू लाइफ एंड हेल्थ इफेक्ट होती है किस किस की, इनमेट्स की भी और पुलिस पर्सनल्स की भी जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, ओके। What is parole? Parole means a conditional or time-bound temporary release of a prisoner during his sentence with a specific purpose, right? So it is a conditional. There are certain conditions attached, right? That you cannot do this, you have to do this, right? Conditions attached होती हैं, time-bound होती है, एक specific time के लिए दी जाती है, and for a specific purpose, right? So in India, the laws, the acts that govern, parole rules or laws is Prison Act 1894, please note it down, important, and Prisoner Act 1900, right? These are the two laws that govern, and every state has different rules related to parole. Every state has different rules. This is also something that you should know.
And India, parole is granted for emergency purposes, for emergency reasons, like if there is a death in the family, or there is serious illness, or there is a delivery of the child. For such reasons, parole is given, right? So that is what is parole. Right now, also for natural calamity, also if there is any natural calamity, then also parole is granted. But here is a pandemic, so parole is being granted, right? Now, so recently a case was being heard in the Supreme Court, and the question arose that can house arrest or should house arrest be considered as detention? Detention का मतलब होता है जब आप किसी को एक पर्टिकुलर प्लेस पे रख रहे हो, आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हो वहां से जाने के लिए, जैसे पुलिस कस्टडी में होते हो तो आप एक कमरे में होते हो, बंद होते हो, तो डिटेंशन, राइट? सो हाउस अरेस्ट कैन बी कंसिडर्ड एज डिटेंशन और शुड इट बी कंसिडर्ड एज डिटेंशन? उसके लिए आपको दो सेक्शन समझने पड़ेंगे, बेयर प्रोविजन है, जल्दी से समझ लेते हैं। तो सेक्शन 57 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहता है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। ठीक है, बेसिकली हमें क्या पता चलता है कि अ पर्सन हु इज अरेस्टेड कैन बी केप्ट इन कस्टडी फॉर मोर देन 24 आवर्स। बट अगर किसी को 24 आवर्स से ज्यादा रखना पड़ जाए तो क्या करना है वो भी देखेंगे। देखिए, नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a magistrate under section 167, exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court। ठीक है ना, exclusive मतलब माइनस द ट्रैवल टाइम, 24 आवर्स के से ज़्यादा वो नहीं रख सकते, ठीक है ना। और 24 आवर्स से ज़्यादा अगर रखना है तो प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स हैज़ बीन लेड डाउन इन सेक्शन 167, ठीक है ना। तो इसके अंदर पूरे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है, वो लेकर जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, किस केस के अंदर कितने डेज की कस्टडी दे सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो ये 167 सेक्शन के अंदर सारा दिया हुआ है, राइट। तो अब आगे चलते हैं। बेसिकली कोर्ट शुड कंसिडर हाउस अरेस्ट एज एन ऑप्शन, ऐसा जस्टिस के एम जोसेफ एंड जस्टिस उदय उमेश ललित जी ने कहा है, ठीक है ना। तो उसके अंदर द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस अरेस्ट एज पार्ट ऑफ कस्टडी अंडर सेक्शन 167 हैज नॉट इंगेज द कोर्ट्स इंक्लूडिंग दिस कोर्ट। तो बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि सेक्शन 167 के अंदर प्रोसीजर दिया हुआ है कि अगर 24 आवर्स से ज़्यादा आपको रखना है किसी को डिटेंशन में, कस्टडी चाहिए किसी की पुलिस को, तो क्या करना पड़ेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। और उसके रूल्स कहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, सेक्शन 167 में, जैसे हमने बात करा, ठीक है। तो किसी ने इसके ऊपर फोकस नहीं किया कि क्या हाउस अरेस्ट को भी 167 के अंडर डिटेंशन माना जा सकता है। हाउएवर व्हेन द इशू हैज कम इनटू फोकस एंड नोटिसिंग इट्स इंग्रेडिएंट्स वी हैव फॉर्म्ड द व्यू दैट इट इन्वॉल्व्स कस्टडी व्हिच फॉल्स अंडर 167। तो उन्होंने कहा है कि जब हमारा फोकस गया और हमने नोटिस किया, कोर्ट कह रही है, तो हमें लग रहा है कि हाउस अरेस्ट फॉल्स अंडर सेक्शन 167। मतलब हाउस अरेस्ट, दोबारा पढ़ लेते हैं इसको और डिफरेंट कलर से मार्क करोगे। हाउएवर व्हेन द इशू हैज कम इनटू फोकस and noticing its ingredients, ठीक है ना, we have formed the view that it involves custody which falls under section 167। मतलब हाउस अरेस्ट भी कस्टडी के विदिन आता है, माना जाएगा अंडर सेक्शन 167। Okay, we observe that under section 167 in appropriate cases it will be open to the courts to order house arrest. As to its employment without being exhaustive we may indicate criteria like age। अब यहाँ पे पहले हम ये वाला पार्ट समझ लेते हैं कि कोर्ट कह रहा है कि कोर्ट्स को सेक्शन 167 में अप्रोप्रिएट केसेस में, कुछ केसेस के अंदर, इन सम केसेस, ठीक है, इट विल बी ओपन टू द कोर्ट्स टू ऑर्डर हाउस अरेस्ट। मतलब कोर्ट को कहा जा रहा है कि कुछ केसेस में आप ऑर्डर कर सकते हो क्या, हाउस अरेस्ट, ठीक है ना। और एज टू इट्स एम्प्लॉयमेंट विदाउट बीइंग एग्जॉस्टिव वी मे इंडिकेट criteria like age, health condition and the antecedents of the accused, the nature of the crime, the need for other forms of custody and the ability to enforce the terms of the house arrest। तो वो कहते हैं कि certain rules lay down करे जा सकते हैं जिसके अंदर according to age, क्या crime commit क्या है, health condition क्या है, ठीक है ना, या फिर कुछ other types of nature of crime देख सकते हैं, and then we can consider house arrest, courts can consider house arrest as an option। We would also indicate under section 309 also the judicial custody being custody ordered subject to the following criteria। To post conviction cases we would leave it open to the legislature to ponder over its employment। तो मैंने ये actually इसलिए include किया because I want to discuss the word conviction और convict भी जिसको हम कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है when it is proved that the person has committed an offense, that the person
हैज कमिटेड एन ऑफेंस, ठीक है ना, जब प्रूव हो जाता है कि इसी ने कमिट किया है। अक्यूज्ड कौन होता है, जिसके अगेंस्ट अभी एलिगेशंस लगी हैं, इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड, इल्जाम भी कह सकते हैं, जैसे हम एलिगेशंस लगी हैं, नॉट प्रूव्ड दैट पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, ठीक है ना, अभी वो अक्यूज्ड है, एंड कन्विक्शन मतलब इट हैज बीन प्रूव्ड दैट द पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वो कह रहे हैं कि ये हम पोस्ट कन्विक्शन हम छोड़ रहे हैं किसके ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर, टू थिंक ओवर इट्स एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। We have indicated the problems of overcrowded in prisons and the cost of the state in maintaining prisons. अब पहले भी वो जो कह रहे हैं कि overcrowding हो रखी है prisons के अंदर, तो रीजन क्या है कि वो जो एक अब हाउस अरेस्ट क्यों कंसिडर किया जा रहा है, क्लैट वाले प्लीज फोकस, ठीक है। ओवरक्राउडिंग है prisons में इसलिए, और नंबर टू यहाँ पे कॉस्ट, हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग, हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग prisons, right? इसीलिए हाउस अरेस्ट कुछ केसेस में कंसिडर करा जा सकता है। You seek exemption from compiling with the FCRA provisions. पहले FCRA क्या है, फुल फॉर्म, Foreign Contribution Regulation Act, FCRA, very important, please note it down, right? इसका पर्पस क्या है, क्यों है ये? FCRA 2010 has been enacted by the Parliament to consolidate the law to regulate the acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality by certain individuals or associations or companies, to prohibit acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality for any activities detrimental to national interest and for matters connected therewith or incidental thereto. देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि क्यों बनाया गया है कि जो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आ रही है, बाहर की कंट्री से अगर कंट्रीब्यूशन आती है एनजीओ को, तो उसके ऊपर टू रेगुलेट इट, ठीक है ना, टू मेक श्योर कि वो नेशनल इंटरेस्ट के हार्म में नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए ये बनाया गया है। तो इसके रिगार्डिंग लॉज है, उनको कंप्लाई करना पड़ता है इससे, ठीक है ना। तो इसके अंदर अभी इन्होंने रिसेंटली बोला था, अराउंड अक्टूबर 2020 के अंदर बोला था कि आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है एसबीआई की ब्रांच में, न्यू दिल्ली की ब्रांच में, बाय 31 मार्च 2021। तो कोई एनजीओ है जो एफसीआरए बेसिकली रजिस्टर करना होता है एफसीआरए के साथ, अगर वो नहीं कंप्लाई कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? इंडियन एंटिटीज इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स एंड चैरिटेबल ट्रस्ट होपिंग टू रिसीव COVID-19 relief material from overseas individual donors or donor agencies could be in trouble unless they are registered under the Foreign Contribution Regulation Act with a stated objective involving provision of medical care, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रॉब्लम आती है फॉरेन एड लेने में, ठीक है ना, जो कि बहुत सारी आ रही है। तो एनजीओ सीख कर रहे हैं कि एग्जाम्प्ट कर देना चाहिए बिकॉज ऑफ कोविड एफसीआरए की प्रोविजन से कंप्लाई करने के लिए, ठीक है। हम बात करेंगे मराठा रिजर्वेशन के बारे में। मराठा रिजर्वेशन जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने मराठा कम्युनिटी को दी थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी। हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, प्लीज वॉच द लास्ट वीडियो, आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अब उसका रीजन क्या था, वन मेजर रीजन बताइए मुझे, रीजन क्या था, कॉमेंट में बताइए मुझे। रीजन वॉज दैट 50% का जो कोटा होता है, 50% का जो कोटा होता है या जो लिमिट होती है, वो रिजर्वेशन उसको प्लस में जा रही थी, ठीक है ना। कैसे, इसको समझते हैं। मान लीजिए 100 सीट्स हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, 100 सीट्स हैं इंस्टीट्यूशन में, ठीक है ना, कहीं पर भी 100 सीट्स में से अराउंड 56 to 57 सीट्स रिजर्व्ड कोटा की थी, रिजर्व्ड कोटा की थी, और बची हुई सीट्स जैसे कह सकते हैं 43 सीट्स सिर्फ जर्नल कैटेगरी के लिए थी, ठीक है ना। ऐसा सा कुछ हो रहा था, मैं ये एग्जाम्पल ले रही हूँ, दिस इज एग्जाम्पल, ठीक है ना। 50% प्लस कोटा का क्या मतलब है, ये जर्नल कैटेगरी के लिए थी और बाकी सब रिजर्व कोटा के लिए थी। इसका मतलब ये नहीं कि 56 to 57 सीट सारी मराठास के लिए थी, नहीं, इसके अंदर जितनी भी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है ना, जितनी भी XYZ जितनी भी कैटेगरीज थी उनकी टोटल के अंदर, तो जब मराठास की जितनी परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन थी वो ऐड करी गई, तो जो रिजर्व कोटा की सीट्स थी वो 50 प्लस जाने लग गई।
तो दिस वॉज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज इंदिरा साहनी की जो जजमेंट है उसके अंदर कहा गया है कि 50% की जो लिमिट है वो एक्सीड नहीं कर सकते, सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में कर सकते। जब मराठास की जो रिजर्वेशन थी वो चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो साथ में ही कुछ केसेस फाइल हुए जिसके अंदर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी चैलेंज कर दी गई, चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहते हैं, तो देख लेते हैं। द अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 338B एंड 342A। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, आर्टिकल 338B एंड आर्टिकल 342A राइट ऐड किए गए 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। राइट, अब आर्टिकल 338 क्या कहता है, वो बात करता है, वो कहता है कि देयर शुड बी अ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, देयर शुड बी अ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड उसकी स्ट्रक्चर, ड्यूटीज और पावर्स डिफाइन करता है। ठीक है ना, ये तो हमारा आर्टिकल 338 है। 342A क्या कहता है हमारा, 342 क्या कहता है, 342 कहता है स्पीक्स अबाउट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू नोटिफाई अ क्लास एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। तो क्या है, देखिए समझिए इस चीज को। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई करती आ रही थी आज तक कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ग्रुप्स कौन से हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंगली उनके लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेप्स लिए जा रहे थे। तो कौन आइडेंटिफाई कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, पंजाब है, हरियाणा है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी। ठीक है ना, अब जब ये अमेंडमेंट आई तो इसने क्या बोला हुआ है, speaks about the power of the president to notify a class as socially and educationally backward class and the power of the parliament to alter the central SEBC list। मतलब ये जो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, ये ऐसा इन्होंने बोल दिया कि अब ये कहाँ पे चलेगी, किसके पास चलेगी, प्रेसिडेंट के पास चलेगी, प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे और पार्लियामेंट कर सकती है, या पार्लियामेंट, ठीक है ना, ऑल्टर, पार्लियामेंट ऑल्टर कर सकती है लिस्ट को, मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर चली गई। अब हम इसका बेयर प्रोविजन पढ़ते हैं क्योंकि इसी के ऊपर मेन आर्ग्यूमेंट है। ये तो सॉर्टेड है, ठीक है, ये तो सॉर्टेड है, बट मेन आर्ग्यूमेंट आर्टिकल 342A का है कि क्या ये वैलिड है, क्या ये पावर स्टेट से ले ली गई है और प्रेसिडेंट को दे दी गई है, तो ये मेन आर्ग्यूमेंट है। अब ये समझते हैं। हमारा जो आर्टिकल 342A है वो क्या कहता है, द प्रेसिडेंट मे विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड वेयर इट इज अ स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर देयरऑफ बाय पब्लिक नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। देखिए क्या कह रहे हैं, द प्रेसिडेंट with respect to any state or union territory, ठीक है ना, आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर, जहाँ पे स्टेट है, ठीक है, बाय पब्लिक नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। क्या कहने की वो कोशिश करें, वही जो हम पहले बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट विल आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड classes, socially and educationally backward classes president identify करेंगे, which shall for the purposes of this constitution be deemed to be socially and educationally backward classes in relation to that state or union territory। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहाँ भी SEBC बोले जाएंगे तो ये लिस्ट को ही रेफर किया जाएगा। ठीक है ना, Parliament may by law include in or exclude from the central list of socially and educationally backward classes specified in a notification issued under clause 1 and any socially and educationally backward class, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent नोटिफिकेशन। सो बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक तो प्रेसिडेंट के पास पावर दे दी और किसको दे दी, पार्लियामेंट को पावर दे दी कि वो इंक्लूड बाय वे ऑफ लॉ, वो इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं किसको, सेंट्रल लिस्ट के अंदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है ना, हमें समझ में आ गया। ठीक है ना, तो अब क्या हो रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है कि हमने यहाँ पे सेंटर लिस्ट लिखा हुआ है, सेंट्रल लिस्ट, ठीक है ना, जो ये जो लिस्ट हमने बनानी है, मतलब जो प्रेसिडेंट लिस्ट बना रहे हैं, एंड बाय लॉ जो पार्लियामेंट ऐड और एक्सक्लूड या सब्सट्रैक्ट कर सकता है ग्रुप्स के नाम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में से, वो सिर्फ सेंट्रल जॉब्स के लिए और जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए है। हम स्टेट की पावर नहीं लेना चाहते, समझ रहे हो ना। बट
जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहा है कि नहीं, अगर हम लिटरल मीनिंग, लिटरल मतलब जो वर्ड्स अगर हम कंसिडर करें, एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम कंसिडर करें, तो उसका मतलब यही बनता है कि अब जो पावर है वो किसके पास है, अब वो पावर स्टेट के पास नहीं है, किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है या पार्लियामेंट के पास है। समझ में आ रहा है, राइट? Government of India filed a review petition in the Supreme Court over its judgment on Maratha reservation in the स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि मराठा की जो रिजर्वेशन है, मराठा की जो रिजर्वेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिव्यू पिटिशन फाइल किया है कि जी शायद आपने एरर कमिट कर दिया है, ठीक है ना। और जो है वो किस चीज आर्टिकल के इंटरप्रिटेशन के लिए एरर कमिट कर दिया, आर्टिकल 342A जो हमने पढ़ा कि स्टेट से पावर लेकर के किसके पास चली गई, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के पास, ठीक है। पढ़ते हैं। In the judgment that declared that Maratha reservation is unconstitutional, a constitution bench of the Supreme Court dealt with another issue। वही हमने बात करी कि another issue क्या था, ये पावर वाला सीन, ठीक है। By a 3:2 majority, 3:2 मतलब 3 जजेस ने एक चीज हेल्ड करी और 2 ने एक चीज हेल्ड करी। देखते हैं क्या। It ruled that after the passage of the 102nd Constitutional Amendment Act in 2018, the states do not have any power to identify socially and educationally backward classes। पढ़ रहे हो ना, वही कि हमने आर्टिकल 342A जो है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 3 ऑनरेबल जजेस ने ये हेल्ड किया कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, आर्टिकल 342A के अंदर अब स्टेट्स के पास नहीं पावर रही, अब states are not having the power, the president and parliament are having the power, ठीक है ना, president या parliament, okay fine। तो ये अब ये मेजर इशू है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 342A की क्या इंटरप्रिटेशन की है कि स्टेट्स डू नॉट हैव एनी पावर टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर्स का क्या आर्ग्यूमेंट था, एडवोकेट का क्या आर्ग्यूमेंट था, वो पढ़ लेते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट इट वाज नेवर इट्स इंटेंशन टू डिप्राइव स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ देयर पावर टू आइडेंटिफाई SEBCs। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या आर्ग्यू किया था कोर्ट के अंदर, ठीक है ना, कि हमारी इंटेंशन 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आने का हमारा इंटेंशन कभी भी ये नहीं था कि हम स्टेट की पावर ले लें टू आइडेंटिफाई SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना, ये उनका आर्ग्यूमेंट। बट द कोर्ट इंटरप्रेटेड द बेयर टेक्स्ट ऑफ द अमेंडमेंट टू द इफेक्ट दैट ओनली द प्रेसिडेंट कैन पब्लिश अ लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन रिलेशन टू ईच स्टेट एंड दैट ओनली पार्लियामेंट कैन मेक इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स इन इट। अब मेन इशू क्या है, यही मेन इशू है, क्वेश्चन यही अराइज होता है कि क्या अब स्टेट के पास पावर है या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के पास पावर है, ठीक है। जस्टिस अशोक भूषण विद अनदर जज, मतलब जो 2 जजेस दूसरी साइड पे थे, वो क्या कह रहे हैं, अग्रीड विद द काउंसिल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट and constituted the minority on this point, accepted the union government's position that it was never its intention to deprive the states of their powers। तो ठीक है ना, 3 honorable judges held that states are not having the power, central government is having the power, but 2 judges said that no, the state governments have the power, but क्योंकि 3 judges are on one side, so the opinion of the majority would be the rule, right, would be taken into consideration, would be the law, right। They held that the central list was only for use by the center in reservations for jobs and institutions under the union government and will not apply to the states। वो क्या, एडवोकेट का क्या आर्ग्यूमेंट था कि ये जो लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, वो सिर्फ सेंटर की जो जॉब्स है उनकी रिजर्वेशन के लिए है, और जो सेंट्रल के इंस्टीट्यूशंस है, सेंटर के इंस्टीट्यूशंस है, उनके लिए है, स्टेट से इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो इसी पॉइंट पे बेसिकली मेजर पॉइंट ये है कि क्या अब स्टेट्स के पास पावर रहेगी या वापस ले ली जाएगी, तो ये जब ये पिटिशन डिसाइड होगा उसके बाद हमें पता चलेगा। The Supreme Court Juvenile Justice Committee, in coordination with UNICEF, highlighted the need to urgently provide care and protection to the children who are suddenly made vulnerable by the loss of one or both parents to the second wave of COVID-19। बहुत सारे बच्चों ने they have lost both their parents in the second wave of COVID, right, and बहुत ज़्यादा trafficking हो रही है बच्चों की। तो Supreme Court Judge S. Ravindra Bhatt, who is the chairman of the Juvenile Justice Committee, in a review meeting, अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा important क्या है, जुवेनाइल जस्टिस कमिटी के हेड कौन है, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, सुप्रीम कोर्ट जज। सो प्लीज इट इज इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है ये।
राइट, आगे पढ़ते हैं. हेल्थ मीटिंग विद हाई कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड द सेंटर एंड सेट efforts should be made to provide interim care for children who have been orphaned, abandoned or even left. ठीक है ना, जिनके पेरेंट्स मर गए हैं, जिनको अबैंडन कर दिया गया है, या जिनको who have been left unaccompanied in their own homes. Some of the measures discussed were setting up a state level nodal officer and a district task force for rapid response for the care and protection of such children. Other steps include sponsorship for children who had lost parents or bread earners or were facing economic hardship. Justice Bhatt highlighted the need for clear guidance or steps to be taken in the event which when such children in an extremely vulnerable state had been exposed to the virus or showed symptoms of infection, care measures for their isolation and treatment. So basically सबसे पहले तो बात करी गई कि जो बच्चे ऑर्फन हो गए या जिन्होंने they have lost the bread earner of the in their family or they are facing economic issues, ठीक है ना, उनके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं. राइट, नंबर 2 इज कि जिन बच्चों को, बिकॉज वी नो कि थर्ड वेव कहा जा रहा है किसके लिए आएगी, चिल्ड्रन को इफेक्ट करेगी सबसे ज़्यादा, तो उनके लिए, ठीक है ना, केयर मेजर्स फॉर देयर आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट नीड टू बी स्टेप्ड अप, ये बोला गया है. इन दिस रिगार्ड जस्टिस भट्ट said that caregivers and employees of child care institutions, both government and private, should be vaccinated as frontline professionals. This is important. ठीक है, उनको करना चाहिए as frontline professionals. ठीक है, he said child care institutions should be declared essential services. क्या डिक्लेयर कर देना चाहिए? Essential services. So you should remember this because इसके ऊपर और भी updates अभी आएंगे. Right. According to UNICEF, India has over 30 million orphan and abandoned children. The Juvenile Justice, Care and Protection of Children law was enacted in 2015. Please, this is important. ठीक है ना. The Juvenile Justice Rules of 2016 and Adoption Rules of 2017 followed to create the Central Adoption Resource Authority as a statutory body for the regulation, monitoring and control of all intra-country and inter-country adoptions. मतलब जो country के within adoptions होंगी और country के बाहर भी, मतलब इंडिया से अगर कोई बाहर बच्चा लेके जाना चाहता है तो वो भी कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी. प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट ऑफ इट. कारा की इंपॉर्टेंस क्या है? इट ग्रांट्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट ग्रांट्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर ऑल इंटर कंट्री adoptions pursuant to India becoming a signatory to the Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in respect of inter-country adoptions. तो अगर किसी बच्चे को कंट्री से बाहर कोई लेके जाना चाहता है, अडॉप्ट करके बाहर लेकर जाना चाहता है, तो कारा इज द वन हु अप्रूव्स. ठीक है. इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी टू यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द child. So please make a note of this. Chief Justice Ramana launched a mobile app which would allow media persons to view the Supreme Court's virtual proceedings live on their mobile phones, actively considering the proposal to telecast live the proceedings of the Supreme Court. इससे याद रखना चाहिए कि गुजरात High Court being the first High Court that has started live telecast of its proceedings on YouTube. Right, public access to court hearings was important as the ruling of courts, more particularly the Supreme Court, had an impact on the lives of people across the country. तो अभी तक क्या है, सिर्फ मीडिया पर्सन्स को ये वर्चुअल प्रोसीडिंग्स अवेलेबल हैं लाइव ऑन देयर मोबाइल फोन्स. अभी वो क्या कंसिडर कर रहे हैं, प्रपोजल किसका है कि लाइव टेलीकास्ट ही स्टार्ट हो जाए, जैसे राज्यसभा का और लोकसभा का होता है. द पर्सन शुड रिमेन सेफ, इसलिए ये किया गया है. ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक अ नोट ऑफ दिस. नंबर 1 तो ये नोट कर लो कि टेलीकास्ट प्रपोज करें, एक्टिव टेलीकास्ट, और ये नोट कर लो कि ऐप लॉन्च किया गया. राइट, इतना. उसके बाद ये वाली स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018 की जजमेंट है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अप्रूव लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग citing it as a part of right to assess justice under article 21 of the Indian Constitution. ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये नोट कर लीजिए और ये नोट कर लीजिए. Okay. Assistant Inspector Sachin Vaze dismissed from service by Mumbai Police Commissioner under Article 311 of the Indian Constitution. Article 311 is important. Please make a note. Article 311, we are going to discuss the bare provision in a while. First, let's read the news. In 2004, Vaze was suspended from the force in connection with his alleged role in Khwaja Yunus murder case before he was reinstated again in 2020. National Investigation Agency arrested him on March 13, 2021 in connection with Ambani terror scare. According to NIA, it was Vaze who had plated the Scorpio vehicle with gelatin sticks outside the Ambani residence along with others
on 25th February 2020. The NIA also stated that he was also involved in the murder of his friend who was using the Scorpio and vehicle found outside the Ambani residence. तो ये तो स्टोरी है, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना, बट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए आर्टिकल 311. अब आर्टिकल 311 पढ़ लेते हैं. बेयर प्रोविजन, डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और अ स्टेट. ठीक है ना, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है ना, उनके बारे में, उनके जो रिमूवल, डिसमिसल और रिमूवल या रिडक्शन इन रैंक की बात करता है आर्टिकल, कौन सा, आर्टिकल 311. ठीक है ना, तो आप नोट कर लीजिए ये सारा. सिविल सर्वेंट्स जो स्टेट के हैं या फिर यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ठीक है ना. नो पर्सन हु इज मेंबर ऑफ अ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और एन और एन ऑल इंडिया सर्विस और अ सिविल सर्विस ऑफ अ स्टेट और होल्ड्स अ सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन और a state shall be dismissed or removed by authority subordinate to that by which he was appointed. Very important. इसका short note क्या बनेगा, that जो इनकी appointment है, जो appointing authority है, उससे नीचे की कोई authority इनको रिमूव या डिसमिस नहीं कर सकती. अपॉइंटिंग अथॉरिटी से जो सुबॉर्डिनेट मतलब नीचे की जो अथॉरिटी है वो नहीं कर सकती. या तो जिसने अपॉइंट किया है वो करेंगे या उससे ऊपर की अपॉइंटिंग अथॉरिटी मतलब उससे हायर लेवल की जो अथॉरिटी है वो उनको रिमूव या डिसमिस कर सकती है. राइट. नेक्स्ट इज नो सच पर्सन एज aforesaid shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges, provided that where it is proposed after such inquiry to impose upon him any such penalty may be imposed on the basis of the evidence adduced during such inquiry, and it shall not be necessary to give such person any opportunity of making representation on the penalty proposed, provided further that this clause shall not apply. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये, कि the person would be given क्या, इंक्वायरी के बिना डिसमिस या रिमूव नहीं कर सकते. क्या कहा है, इंक्वायरी इज इंपॉर्टेंट. द पर्सन वुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस एंड व्हाट, एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. उनको सुना जाएगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. राइट. एंड उसके बाद क्या है, किन केसेस में ये नहीं अप्लाई होगा, वेयर अ पर्सन इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच हैज लेड टू हिज कन्विक्शन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज. कन्विक्शन हम समझे थे ना, और क्रिमिनल चार्ज मतलब जहाँ पे क्रिमिनल चार्जेस हैं पर्सन के अगेंस्ट. ठीक है, और ये प्रूव हो चुका है, कन्विक्ट हो चुका है तो मतलब प्रूव हो गया. ठीक है ना. वेयर द अथॉरिटी empowered to dismiss or remove a person or to reduce him in rank is satisfied that for some reason to be recorded by the authority in writing it is not reasonably practical to hold such inquiry. मतलब अगर वो कहे जो अथॉरिटी है कि it is not reasonable to hold the inquiry, where the president or the governor as the case may be satisfied that in interest of the security of the state it is not expedient to hold such inquiry. ठीक है, नॉर्मल केसेस में इंक्वायरी करी जाएगी, इन्फॉर्म किया जाएगा पर्सन को कि क्या चार्जेस हैं, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है. ये सारे क्या हैं, ये 3 पॉइंटर्स क्या हैं, ये एक्सेप्शंस हैं. राइट. आपने नोट कर लिया है आर्टिकल 311. राइट. Jails in Punjab are all set to become reform houses. Punjab government approved prison rules 2021 under the Prison Act 1894. This is important. तो क्या करेंगे, ऊपर से पढ़ लेते हैं. प्रिजन विद इन प्रिजन होगा हार्डन क्रिमिनल्स के लिए, जेल एम्प्लॉयज के लिए एडुकेट प्रोविजंस होंगी, वेलफेयर फंड्स होंगे, लीगल असिस्टेंस होगी. ठीक है ना. और एंड आफ्टर केयर असिस्टेंस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द पंजाब प्रिजन रूल्स टू इंश्योर सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन ऑफ रिलीज्ड कन्विक्ट प्रिजनर्स. जिनको मतलब जिनकी सेंटेंस पूरी हो गई है बट उन्होंने ऑफेंस करा था बट अब वो रिलीज कर दी गए, जेल से बाहर आ गए हैं. ठीक है. मॉडर्न सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस गैजेट्स दिए जाएंगे, बेटर मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, ग्रीवियंस रीड्रेसल सिस्टम होगा जेल्स के अंदर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवेलेबल करवाई जाएगी टू टॉक टू देयर फैमिलीज, फ्रेंड्स, लीगल काउंसलर फेस टू फेस, प्रिजन पंचायत एंड महापंचायत टू plan and execute daily recreational programs. Right. तो ये है पंजाब is the state which has done so. Right.